उसी का एक क्वेश्चन और करना, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है, सो जस्ट स्टार्ट विद दैट. It's a good question and it's kind of one of its variety. Let me write the question. Okay. The question goes like this. Converging rays are incident on a convex spherical surface mirror, or incident on a convex spherical mirror. ठीक है? So that their extensions intersect 30 centimeter behind the mirror, so that their extensions intersect at 30 centimeter behind the mirror. On principal axis, behind the mirror, on principal axis. ठीक है. The reflected rays in extension intersect. The reflected rays extensions intersect at 1.2 meter behind the mirror at principal axis. Determine the focal length of the mirror. Determine focal length of the mirror. This is a question. It's a question of virtual object, guys. ठीक है? कैसे इसको जरा, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया होगा तो आपको इसमें करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है. इट इज नॉट अ टिपिकल 1/v 1/u क्वेश्चन. इट इज नॉट अ टिपिकल 1/v 1/u क्वेश्चन जो आप स्ट्रेट लगा सकते हो. थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं. कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. तो पहले एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं. हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है. दिस इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, राइट. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, so this is the pole of the mirror. We have convergent rays incident on this mirror, right? थोड़ा सा इसका ऐसे बनाते हैं. डायग्राम इसका थोड़ा ट्रिकी है. This is the extension reflections are meeting this. हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा और बेंडेड. This is the convergent ray incident on the convex mirror. Clear? If this mirror is not there, they would go and happily intersect somewhere here.
incident on a convex spherical mirror so that their extensions intersect at 30 centimeter behind the mirror. So their extensions, they are meeting 30 centimeter behind the mirror. Clear so far? No, बट होगा तो नहीं, ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि रास्ते में मिरर है तो ये थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो मान लो ये रेज कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, सॉरी, like this, and after reflection the reflected rays extension, reflected rays कौन सी है? ये वाली, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, रिफ्लेक्टेड रेज ये वाली है, ग्रीन वाली, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ग्रीन वाली. Their extensions, they meet 1.2 meter behind the mirror. This is a scenario. So these white rays were incident rays. These are incident rays. इसीलिए एरो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. इज द सिनेरियो क्लियर? सो इस मिरर की वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरसेक्शन 30 सेंटीमीटर पे would have happened, it's happening at 1.2 meter behind because of the reflection caused by mirror. So now this can be perceived as कि if this mirror is not here before the optical phenomena, मतलब ये मिरर यहाँ पे नहीं है तो रिफ्लेक्शन के पहले they would have cut at 30 centimeter. So go back to the definition of virtual object जो मैंने फर्स्ट क्लास में को बताया था. बिफोर ऑप्टिकल फिनोमिना where the rays appear to converge, that is your virtual object. So dear, ये जो आपका है ये वाला point, let's name it O, because in this context there is no actual object, there is no real object. You have just been given a set of convergent incident rays. If the mirror was not there, they would have converged at O. So that means O is our virtual object. Now this virtual object acts like a object for this mirror, right? And because of this mirror, the image is formed at this place. ये इस मिरर की वजह से ये यहाँ इंटरसेक्ट ना करके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. So this point has to be perceived as the image. Understand, in reality there is no object, there is no image. Right? In reality, there is no object, there is no image. At the end of the day, it's just a set of convergent beam getting reflected by a convex mirror. We are just trying to put ray optics into this scenario. कैसे सोचना है इसको? अब ये आपको एक तरीका है प्रॉब्लम को करने का जो आपको बार बार समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. हर बार जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स में जहां पे इस तरीके के वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको क्या सोचना है कि बिफोर द ऑप्टिकल फिनोमिना जहां पे रे कन्वर्ज कर रहे हैं वो मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एंड आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमिना जहां पे रेस कन्वर्ज कर रहे हैं या अपीयर टू कन्वर्ज कर रहे हैं वो मेरा वर्चुअल इमेज है. ठीक है. सो यहां पे अब देखो हमको v को, अब देखो v u की जो डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, u नेगेटिव होता है, u हमेशा ऐसा नेगेटिव होता नहीं है. यहां पे जो u है वो मैं बोल सकता हूं प्लस का 30 है ना. यहां पे जो v है क्या मैं बोल सकता हूं प्लस का 120 है. राइट. नाउ वी कैन अप्लाई अपना जाना पहचाना फॉर्मूला विच इज 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So if you guys do this and confirm whether focal length is 24 centimeter. ठीक है.
So this was one question of spherical mirror which involves a virtual object. Understand, ये टाइम एंड अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा. आई जस्ट डू एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक. रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस. लेट्स पुट द हेडिंग रिफ्रैक्शन. काफी क्वेश्चंस आते हैं रिफ्लेक्शन से कम क्वेश्चन आते हैं, बट कराए मैंने इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, सीईटी में, मेंस में बहुत बार रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं बेसिक वाले, इसलिए मैंने कराए रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, और बोर्ड्स में भी आते हैं रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्चुअल सिलेबस ऑफ रिफ्रैक्शन. एट फर्स्ट विल स्टार्ट विद प्लेन सर्फेसेस. यहां पे ये मान के चल रहा हूं मैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है 10th में, और जो अभी आपने पढ़ा है स्नेल्स लॉ जिस तरीके से ही पढ़ा है वो आपको थोड़ा अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जिस तरीके से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू याद रखा है उस तरह से प्रॉब्लम होंगे नहीं. तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे इसको लर्न करना पड़ेगा. डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक अलग है बस. ठीक. रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेस. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. लाइट बेंड्स whenever there is medium change. जब भी लाइट का पाथ में मीडियम चेंज हो जाएगा अचानक से तो इट बेंड्स. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. यहां जाने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा. ऑप्टिकल डेंसिटी. इट्स अ रिलेटिव टर्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स जस्ट अ क्यूमुलेटिव, कंपैरेटिव टर्म. ऑप्टिकल डेंसिटी ये कैसे डिफाइन होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी इसका मतलब इट हैज टू डू विद समथिंग डू विद लाइट ओनली. इफ इन अ मीडियम speed of light is slow, that means it's a optically rare medium. If speed of light is fast, right, or high, it is dense, and this is rare. If the speed of light is slow in a medium, that medium is called optically denser. If speed of light is fast in a medium, it is called optically rarer. Beyond this, there is no specific measure of this. You can just compare the optical density of two mediums, whether one medium is optically denser or rarer with respect to other one. And how do you compare? With the speed of light. If light is traveling faster, it is fast in a medium, that means that medium would be called rare, vice versa, dense. Simple? Okay. So the kahani is, in air or vacuum, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल सी लेटर से, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is the maximum you can have. This is the maximum speed you can have of light. In any other medium, speed of light is lesser. Light is this. मुद्दे की बात यह है, हम स्पीड ऑफ लाइट changes
with medium. Speed of light changes with medium. ठीक है, क्या क्या चेंज होता है? एक स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, दूसरी चीज जो चेंज होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम. ये जब भी मीडियम चेंज होगा तो स्पीड लाइट चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी. क्या नहीं चेंज होगा? वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम. तो आप ये तीन चीजें प्लीज याद रखो, कई बार इसी पे क्वेश्चन आ जाता है. लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट. सो प्लीज याद रखना है अपने को, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन सोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है. सन है, मून है, नॉर्मल कोई सिंथेटिक सोर्स है, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स फ्रीक्वेंसी. बाकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती रहती है. सो बिकॉज ऑफ दिस स्पीड चेंज व्हाट हैपेंस, लेट्स से light is traveling in a medium, let's say medium 1, and here is a medium 2. ठीक, एक ray of light which is falling on this surface which is the boundary between two mediums, medium 1 and medium 2. ठीक है, what will happen the moment it comes to this point, next point is the other medium, so it has to adjust its speed because the speed has to be according to medium 2. So what happens, because it has to adjust its speed, it will bend. It will bend. It can bend two ways. It can either bend this way or this way. So rule is, if let's say medium 1 is rare, medium 2 is dense, means the speed of light is higher here and somewhat lesser here. यहाँ पे समझ में आ रहा है रेयर का मतलब क्या हुआ? Speed of light is somewhat higher here, lower here. So it will bend. If there was no medium change, it would have gone like this. Light travels in a straight line. Now, if it is coming from a rare medium going to a dense medium, it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. This is bending towards the normal. Because we are going to a denser medium coming from a rare medium. ठीक है, some nomenclature, this angle between the incident ray, this is the incident ray and this is called the normal. Normal is the perpendicular drawn on the same surface of the incident ray. You draw a perpendicular, right, and that's called normal. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. So I is called angle of incidence. Very basic चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं. ठीक है, the angle between the normal and the refracted ray, this is called the refracted ray. This is called the refracted ray, and the angle between the refracted ray and the normal would be angle of refraction.
I would be angle of refraction. ठीक है, इस केस में क्या हम ये जज कर सकते हैं कि एंगल आई विल बी ग्रेटर देन आर? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. कोई भी चीज जो नॉर्मल की तरफ झुक गई है, इफ इट इज कमिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, एन एंगल आर वुड बी डेफिनेटली लेस देन एंगल आई. बिकॉज एंगल आई आपको कौन सा है? ये वाला पूरा एंगल आई है, राइट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? तो अब ये चीज आई है और ये थोड़ा सा बेंड हो गई इधर, तो आर थोड़ा छोटा हो गया. ये कब होगा? आई विल बी ग्रेटर देन आर व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम गोइंग टुवर्ड एस मीडियम, व्हेन यू आर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं. व्हेन द लाइट इज बेंडिंग, इसमें मैं क्विकली ड्रॉ करता हूं. सेकंड सिनेरियो, light is coming like this. This is my incident and now this is my dense medium, this is my rare medium. Now I'm coming from dense to a rare. So इस केस में क्या होगा? इस केस में it will bend away from the normal, it will bend away from the normal, right? So this is angle I, this is angle R, right? This is bending away from the normal, this is away from normal. और इस केस में हम लोग देखेंगे I will be less than equal to R, less than R. I will be less than R because I is smaller, क्योंकि ये अब इस तरफ बेंड कर रही है, तो R will be greater. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े. ये आप लोग टेंथ में पढ़ चुके हैं सब. यहां पे we define a new constant or new number called refractive index. बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ये refractive index. It is basically a property of pair of media. It is not a property of alone. एक सिंगल मीडियम की नहीं होती है, ये हमेशा एक पेयर ऑफ मीडियम की होती है. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से there is a ray of light coming from medium 1 and going to medium 2 and it is bending. Whichever way it is bending, it is bending. ठीक है, तो लेट्स से मीडियम 1 में स्पीड यहाँ पे लाइट की v1 है, मीडियम 2 में स्पीड v2 है. सो वी हैव डिफाइंड अ क्वांटिटी कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ठीक है, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर द रिफ्रैक्टेड मीडियम. रिफ्रैक्टेड मीडियम, सो इट विल बी ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम. With respect to the incident. So basically refractive index of medium 2 with respect to 1, this will be v1 upon v2. इसको याद रखने का तरीका, एक सिंपल तरीका ये है कि इसको आप ऐसे याद रखो, म्यू हमेशा जब भी आप लिखो तो ये आप लिखो किसका? रिफ्रैक्टेड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम. ये बेटर वे है याद रखने का, बिकॉज यू नेवर नो आपके सिनेरियो में क्या होगा, किधर से इंसिडेंट रे आ रही होगी, किधर जा रही होगी. तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज फॉर द रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम, एंड इन द न्यूमरेटर यू हैव स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम. इसको v1 by v2 याद रखने से कोई फायदा नहीं डियर, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके प्रॉब्लम में क्या v1 होगा और क्या v2 होगा, है ना? तो v1 v2 कैसे याद रखेंगे? v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टेड. नाउ टिपिकली इंसिडेंट मीडियम इज एयर और वैक्यूम.
more often than not, we are dealing our day-to-day life, we are dealing with things in air or vacuum, right? So typically our incident medium is air or vacuum. तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए बार बार ये बोलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बोला कि यार जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें एक कंडीशन डाल दी, इसमें एक कंडीशन डाल दी, जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब इंसिडेंट मीडियम इज फिक्स्ड, इंसिडेंट मीडियम इज एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब जैसे ये काम आप करोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा, ये पे नोट कर लेना कि इसको हम ऐसे 1 म्यू 2 ना लिख के सिर्फ और सिर्फ म्यू लिखेंगे, बिकॉज नाउ वी नो वन ऑफ द मीडियम इज एयर वैक्यूम, और फिर जिस मीडियम की भी बात कर रहे हैं उसका म्यू हो गया, जैसे ग्लास तो ग्लास, वाटर तो वाटर, केरोसिन तो केरोसिन, राइट, एनीथिंग टू एनीथिंग, राइट। तो इस साइड में हमेशा एयर है, इधर वो मीडियम है, तो हमने ये कॉम्प्लिकेशन हटा दिया। और अब V1 हमको पता है, V1 इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बिकॉज इंसिडेंट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, सो इट्स गोइंग टू बी C by V. This is clear? It's going to be C by V. This is speed of light in air and speed of light. और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी ऐसी निकलेगी जो हमेशा 1 से बड़ी होगी, बिकॉज हमने पहले ही बोल दिया दिस गाय इज मैक्सिमम इन एयर वैक्यूम, इन एनी अदर मीडियम इट विल बी लेसर, तो C by V विल बी ए क्वांटिटी मोर देन 1। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, और जनरली मतलब 99% केसेस में हम इसी की बात कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लेकिन हाँ, आपने को ध्यान रखना है कि दिस इज अ स्पेसिफिक केस, दिस इज अ स्पेसिफिक केस, द जेनेरिक केस इज दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया गया किन्हीं भी 2 पेयर ऑफ मीडिया के लिए, और जब एक पेयर ऑफ मीडियम एयर और वैक्यूम हो जाए तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और वही हम डे टू डे में, अगर हम बोलेंगे ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, तो एयर के रिस्पेक्ट में होता है, बोलेंगे नहीं, अंडरस्टूड है, राइट, ये चीज है। ओके, अब यहां से अपने को पढ़ना है आगे रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, विच इज स्नेल्स लॉ, रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, जिसको बुक्स में स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है लॉ, कि इफ यू हैव an incident ray, a normal, a refracted ray, a refracted ray, this is your angle of incidence, this is your angle of refraction। ठीक है, लेट्स से इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। अब यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाएगा, जो आपने अपने टेक्स्ट बुक में पहले पढ़ रखा है और जिस तरीके से मैं इसको इंटरप्रेट करवाऊंगा आपसे, उसमें डिफरेंस आएगा। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्पीड है, ये वो, ये सिर्फ 2 मीडियम्स हैं, एक इंसिडेंट मीडियम मेरा ये वाला है, और इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है। मतलब जब मैं ये म्यू आई बोल रहा हूँ, इसका मतलब एब्सोल्यूट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये म्यू आर है एब्सोल्यूट वाले की। अभी हम म्यू आई से आ रहे हैं और म्यू आर में जा रहे हैं, ठीक है, ये सिनेरियो है, दिस इज आई, दिस इज आर। तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है म्यू आई इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। दिस इज आर स्नेल्स लॉ। मतलब कैसे याद रखना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का एंगल मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू दिस।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल म्यू आर साइन आर म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू, राइट। सो मतलब ये बोल सकते हैं इन अ वे म्यू टाइम्स साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, म्यू टाइम्स साइन थीटा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बुक्स में ऐसा लिखा होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या फिर इसको किसी किसी बुक्स में एन भी लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा रहता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके सिनेरियो में बहुत सारे मीडियम्स हैं वन आफ्टर अनदर, आप कंफ्यूज हो जाओगे किधर आई है किधर आर है और कौन सा म्यू लेना है, राइट। तो आपको मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ये भी याद रख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, इट्स जस्ट दैट दिस काइंड ऑफ presumes that one of the medium is air, which is not typically the case sometimes, right? तो इसलिए ये याद रखना बेनिफिशियल। भी प्रॉब्लम करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बेनिफिशियल, ठीक है। और ये चीज साइन आई बाई साइन आर, चूंकि ये आप देख सकते हो ये चीज, यहां से अगर आप साइन आई बाई साइन आर करोगे, साइन आई बाई साइन आर करोगे आप, तो ये आएगा म्यू आर बाई म्यू आई। Mu r absolute refractive index of the refracted medium, mu I is the absolute refractive index of the incident medium। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, राइट। अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, दिस रेशियो इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि sin I by sin r becomes a constant, but for a pair of media, for a pair of media, since these two will be constant, ratio sin I by sin will be constant. That means if you increase angle of incidence, angle of refraction is bound to increase. If you decrease angle of incidence, angle of refraction is bound to decrease, because they have to maintain this constancy. Okay, let's see if we can do a problem. हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जब आप लोग 12th में आ गए हो तो प्रॉब्लम्स का डोमेन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम रहेंगी उसमें ऐसा हैप्पी सिनेरियो बहुत कम होता है कि बस एक मीडियम दूसरा मीडियम और स्नेल्स लॉ लगाया हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 3-4 मीडियम इन सक्सेशन दिए होते हैं, ठीक है, एक मीडियम दूसरा मीडियम तीसरा मीडियम। तो आपको कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, ये मेरी इंसिडेंट रे है ओरिजिनल, थोड़ा बेंड हुई, यहां पे फिर थोड़ा बेंड हुई, यहां पे फिर थोड़ा बेंड हुई, इस तरह से चल रहा है, ठीक। अब ये मान लो है μ1, ये है μ2, ये है μ3, ये है μ4, ठीक, और लेट्स से ये है μ5। यहाँ पे फाइनली रिफ्रैक्ट हो गए, या सिर्फ यही तक रखते हैं, चलो ठीक है, दिस इज योर μ4, ठीक। लेट्स से ये आपका एंगल है इनिशियल एंगल आई, ठीक है, और ये आपका फाइनल एंगल है आर। जरा ध्यान देना इस बात को, ये मेरा इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बीच में कुछ कहानी हुई है और फाइनली ये रे इमर्ज हो रही है एंगल आर के साथ। क्लियर? मैं स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकता हूं बिटवीन दिस एंड दिस, एज इफ आई डोंट हैव दीस मीडियम्स इन बिटवीन। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं स्नेल्स लॉ इस मीडियम में डायरेक्टली लगा सकता हूं। मतलब मैं ये कर सकता हूं μ1 साइन आई डायरेक्टली इक्वल टू μ4 साइन आर। बहुत काम हमारा बच जाता है कभी कभी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे आप स्ट्रेट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, μ1 साइन आई μ4 साइन आर। ठीक है, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम if there are 2-3 mediums involved.
basically Snell's law applied between first and last medium. चलो okay, now typically there are conditions when there's a medium change but light does not bend. So what are those conditions? वो भी याद रख लो. Conditions for no bending मतलब going straight. ऐसे दो कंडीशन बन सकते हैं कि you have a scenario like this. A ray of light comes like this, falls obliquely. This is medium 1, this is medium 2, this is mu 1 and this is mu 2. And what you observe that it goes undeviated. If the ray is falling obliquely and going undeviated, that means you can draw this straight conclusion that mu 1 is equal to mu 2. That means the refractive indices of both the systems, both the mediums are exactly equal. If mu 1 will be equal to mu 2, then there will be no bending क्योंकि लाइट को लगेगा ही नहीं कोई मीडियम चेंज हुआ है. To be honest, ये पहला कंडीशन है, केस ए. केस बी क्या है? That is a normal incidence. मतलब you have a pair of media like this and the light ray falls not obliquely, it falls normally on the surface. So what will happen? It will go undeviated. ये याद रखना. It will go undeviated like this. This is medium 1, this is medium 2. यहाँ पे light is falling normally. Light is falling normally on the source. So this is called normal incidence. This is called normal incidence. So in this case also, यहाँ पे mu 1 is not equal to mu 2. ठीक है, ये mu 1 है, ये mu 2 है. Even though मतलब हो भी सकते हैं equal, कोई वो नहीं है, लेकिन typically there is no necessity to for this. Even then it will go straight. ठीक है, if there is a normal incidence. यहाँ पे what is the angle of incidence? 0. Angle of refraction is 0 because the normal and the incident ray are together, right? So angle of incidence is 0. अब स्टार्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. तो पहला एप्लीकेशन रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ. आगे बढ़े. Applications of Snell's law. पहला एप्लीकेशन यहां पे है रियल वर्सेस एपरेंट डेप्थ. रूल यहां पे ये है, ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम when viewed from a rarer medium looks
or appears shallow. So its depth is slightly less if it is observed from a air medium. जैसे कि let's say for example आपने देखा होगा, आप स्विमिंग पूल के आसपास अगर आप खड़े रहो and let's say here is the ground and you are observing this pool from ground, that means you are watching it from air and let's say यहाँ पे coin रखा है. So what you will see, this coin is actually slightly above its actual depth, right? So इसलिए स्विमिंग पूल की डेप्थ जो होती है थोड़ी सी मिसलीडिंग होती है, we don't get the real feel. ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन सिंपल है, ये रे ऑफ लाइट गोइंग लाइक दिस. When do you see things? You want to see this coin, a light ray should start from this and reach your eyes. It will bend away from the normal because it's a dense medium. This is water, that is air. Dense to rare light जा रही है, it will bend away from the normal. It will reach your eye. इमेज कंप्लीट करना तो एक रे और ले लेते हैं. इमेज कंप्लीट करने के लिए एक रे और ले लेते हैं. नॉर्मल, गो स्ट्रेट. इफ यू एक्सटेंड दिस, ये कॉइन जो यहाँ पे रखा है वो, लेट्स से दिस इज ओ, तो आपको आपकी आई को लगेगा कि ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ. सो एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम लुक्स शैलोअर देन व्हाट इट एक्चुअली इज. Right? Now we need to learn a formula and learn to apply this formula quite perfectly. ठीक है, अपने को इस फॉर्मूले को समझना भी है, इसको अप्लाई करना भी सीखना है. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. Let's say this is my actual depth. This is T. Okay. And this is my apparent depth T dash. So T को हम बोलते हैं नॉर्मल लिंगो में, T is called the real depth and T dash is called the apparent depth. This is the way we call these two things, real and apparent. अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये रियल डेप्थ upon apparent depth is equal to mu, which is a refractive index of the denser medium. Refractive index of the denser medium. This is mu of this medium. Refractive index of denser medium. रियल डेप्थ अपॉन दिस. तो इसका मतलब ये आ गया T अपॉन T डैश इज इक्वल टू, या फिर बोल सकता हूं T डैश इज इक्वल टू T ओवर म्यू. T डैश इज इक्वल टू T ओवर म्यू. अब आप यहां से देख सकते हो कि जितना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, आपको ये चीज T डैश उतनी कम लगेगी. इफ इट इज वाटर, मे बी आप यहाँ पे कुछ और भर दो जो वाटर से ज्यादा रिफ्रैक्ट डेंसर मीडियम हो, तो बिकॉज इट विल डिवाइडेड बाय म्यू, तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा. हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शैलोअर द ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक. हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शैलोअर द ऑब्जेक्ट वुड लुक लाइक. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ये आपने शायद नोटिस किया भी होगा, जो क्वेश्चन है इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव यूज्ड दिस पेपर वेट्स. पहले वो लोग काफी यूज करते थे पेपर वेट्स जस्ट टू यू नो होल्ड द पेपर्स. सो पेपर वेट रखा हो, कोई प्रिंटेड पेज रखा हो, तो लेट अस लुक लिटिल यू नो पुश्ड अप. मीडिया में ग्लास स्लैब भी रखा हो, उसको प्रिंटेड पेज के ऊपर रख दो, असल कि लेटर्स आर स्लाइटली पुश्ड अप. उसी का क्वेश्चन है ये. प्लीज राइट डाउन, मैं क्विकली इसको नरेट कर देता हूं. अ प्रिंटेड पेज इज
pressed by a glass cube. A printed page is pressed by a glass cube, ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5. A printed page is pressed by a glass cube, bracket mu is equal to 1.5, bracket close, of edge 6 centimeter. Of edge 6 centimeter. Full stop. By what amount will the printed letters? By what amount will the printed letters appear to be shifted when viewed from the top? When viewed from the top. I'll just quickly repeat it again. A printed page is pressed by a glass cube, brackets mu is equal to 1.5, of edge 6 centimeter. Full stop. By what amount will the printed letters appear to be shifted when viewed from the top? So this is a scenario. यहाँ पे कुछ printed page रखा हुआ है, ठीक है? This is some printed page. And इसके ऊपर हमने एक ग्लास का क्यूब रखा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. This edge is 6 centimeter. Your printed letters will appear somewhat shifted, right, to this place. This shift we have to calculate, right? So in this case, if you see, this is a medium. The real depth of these letters is how much? 6 centimeter. This is your real depth. And let's say ये printed page आपको यहाँ पे दिख रहा है. So this is your apparent depth, isn't it? This is your apparent depth. So अपना फॉर्मूला क्या बोलता है? Real upon is equal to mu. Real is 6. Let's say this is t dash. This is 1.5. तो यहां से आपका t dash आ जाएगा 6 upon 1.5, which is 4 centimeter. But hang on, this is not what is being asked for. What you have given the apparent depth, मतलब depth from the surface. They have asked shifting. Shifting is from the original place. The shifting would be 2 centimeter. So shift would be 6 minus 4, which is 2 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो गाइस. अच्छा क्वेश्चन है ये. एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड. एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड. फुल स्टॉप. When viewed from one side, the apparent distance of the bubble is 12 centimeter. When viewed from one side, the apparent distance of the bubble is 12 centimeter. Full stop. When viewed from opposite side, the apparent distance is 4 centimeter. If side of the cube is 24 centimeter, find the refractive index of the cube.
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्यूब। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन। एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड, फुल स्टॉप। व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड द अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 centimeter. When viewed from opposite side, the apparent distance is 4 centimeter. Full stop. If the side of the cube is 24 centimeter, find the refractive index of the cube. मैं आपको प्रॉब्लम का एक व्यू दे देता हूं एंड आई वुड रादर एनकरेज यू गाइस एटलीस्ट टू अटेम्प्ट इट। सो दिस इज अ क्यूब, आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब है हमारे पास। इसका टोटल एज हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। नाउ इट हैज अ बबल समवेयर, इट हैज अ बबल समवेयर, वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ द बबल इज नॉट गिवन। लेट्स से बबल इज हियर, दिस इज बबल, सो देयर विल बी सम एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द एज एंड फ्रॉम हियर इट विल बी, अगर यहां से x ले लिया हमने तो दूसरे ऑपोजिट साइड से कितना हो जाएगा डिस्टेंस इसका 24 minus x, right? This is the actual depth of or actual distance of this bubble from the surface. Now when you are viewing from this side, this appears at certain distance, and when you view from this side, this appears at certain distance. Appears मतलब apparent, तो जो दो वैल्यूज आपको दी गई है वो apparent है, रियल मैंने लिख दिया है। तो जो फॉर्मूला है रियल वर्सेस अपैरेंट आपको 2 बार लगाना है। इसको आप म्यू ले लो, आपको रियल वर्सेस अपैरेंट 2 बार लगाना है। म्यू इज ए वेरिएबल, एक्स इज ए वेरिएबल। सी इफ यू कैन सॉल्व। The answer would be 3/2. The same formula that we have applied here has to be applied 2 times. The formula is real versus apparent is equal to mu. Three by two is the correct answer. Guys, ये क्वेश्चन है JEE Mains 2023, either shift 1 or shift 2, I don't remember. This question is fairly recent, 2-3 साल 2023 का ही है। अच्छा क्वेश्चन बनाया बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन जो हमने किया ये HCV का था। चलो मैं कर देता हूं, अभी काफी टाइम हो गया। तो पहले इस साइड से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि अपैरेंट उसकी डेप्थ जो है 12 सेंटीमीटर, राइट। इस साइड से देख रहे हैं तो 12, सो इधर से देखा 12, तो मतलब रियल x है वर्सेस अपैरेंट विच इज 12, दैट विल बी इक्वल टू म्यू। और जब इस साइड से देखा तब रियल कितना है 24 माइनस एक्स, और ये कितना है 4, रियल इज 4, दैट विल बी इक्वल टू म्यू। ये भी म्यू है वो भी म्यू है, दोनों को इक्वल कर दीजिए आप।
तो यहां से आ जाएगा x बाई 12 विल बी इक्वल टू 24 माइनस एक्स बाई 4। तो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से 4x आ जाएगा तुम्हारा 24 इंटू 12, या फिर ऐसा कर लो, सॉरी, इसको 4 वन जा 4, इसको 3 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, कट कर लो। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, 72 माइनस 3x, 72 माइनस 3x, इसका मतलब हो गया 4x इज इक्वल टू 72, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 18। अब x 18 आ गया तो यहां से म्यू आ जाएगा, म्यू विल बी 18 बाई 12। यहां से भी सेम ही आएगा, निकाल दे सकते हो आप, 3 बाई 2, ठीक है ना। What if we consider x का apparent depth to be 4 centimeters? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने आर्बिट मांग लिया, आप कर दो। अगर यहाँ पे आप x वाले को 4 ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रॉम ए क्यूब पर्सपेक्टिव। लेकिन हाँ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते टाइम यू विल यूज x बाई 4, जो भी x का आपका x का वैल्यू अलग आएगा, तो x का वो वाला वैल्यू आपको 4 के साथ यूज करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। x अलग आएगा, x ऑब्वियसली x सेम ही आ सकता है, क्योंकि 24 माइनस x है। तो यहां से अगर x मेरा 18 आ रहा है तो 6, राइट, उस केस में x 6 आएगा तुम्हारा, राइट, ओके। चलो, अब दूसरा सिनेरियो है, इसमें b केस बनता है। तो ये केस तो a था हमारा, a केस क्या था, a केस था ऑब्जेक्ट इन ए डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन ए डेंसर मीडियम। उल्टा ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो, आप डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करो, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट विल बी इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर विल बी इन डेंसर मीडियम। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम viewed from, sorry, object is in rare medium viewed from denser medium। ऐसा कब होगा, ऐसा तो हो सकता है कि मान लो आपके पास एक लेक या पॉन्ड कुछ है, ये लेक या पॉन्ड है, ठीक है। इसमें मान लो यहाँ पे कोई एक फिश है, ठीक है, कोई लेक पॉन्ड है, यहाँ पे फिश है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बर्ड है ऊपर, there's a bird here. Now fish is observing this bird. तो क्या होगा, अब ऑब्जर्वर हमारा डेंसर मीडियम में, बिकॉज ये वाटर है, और जहां तक बर्ड्स का पता है तो एयर में ही करती रहती है, फ्लाई करती, तो बर्ड जो भी हो एयर में होगी, कन्वेंशनल विजडम, ठीक है। तो फिश को क्या लगेगा, फिश को देखो, अगर इसको फिश को बर्ड को देखना है तो यहां से एक रे ऑफ लाइट चलनी चाहिए और इसकी आई तक पहुंचनी चाहिए। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं भाई, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये आ रहे हैं, हम रेयर मीडियम से कहां जा रहे हैं, डेंस मीडियम में, तो क्या होगा, हम बेंड करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल हम बेंड कर गए, ऐसे जा रही थी रे, ऐसे होगी थोड़ी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने बेंड किया तो फिश को लगेगा कि ये बर्ड जो है यहां नहीं है, बल्कि बर्ड इमेज, तो यहां से एक और रे ले लो, आप एक नॉर्मल रे ले लो, दैट विल गो अनडिविएटेड, इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस करो, सो दे विल क्रिएट द इमेज हियर। आ रहा है समझ में, यहां पे आपका बर्ड का इमेज है ग्रीन वाला, और ये एक्चुअल बर्ड है। तो अब उल्टा हो गया है, जो बर्ड की एक्चुअल हाइट है, लेट्स से दिस इज h एंड दिस इज h dash, so this is apparent, this is apparent height and this is actual height,
ठीक है, बर्ड अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। जैसे इसमें था कि इसमें पूल शैलोअर दिख रहा था, इसमें उल्टा इफेक्ट है, इसमें बर्ड अपनी इमेज से, बर्ड अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर चली गई। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी म्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये आता है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू म्यू। इसमें हो जाएगा अपेरेंट वर्सेस रियल इज इक्वल टू अपेरेंट हाइट वर्सेस रियल हाइट is equal to mu, where mu is the refractive index of denser medium. Mu is the refractive index of denser medium. ठीक है, अब we have understood both the scenarios, no difficulty. Real height, apparent height, real depth, apparent depth. But let's say we have a scenario like this. हमको नहीं पता, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे मीडियम्स का कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4, और मैं किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से चीज को व्यू कर रहा हूं और मुझे नहीं मालूम कौन मीडियम डेंसर है, कौन मीडियम रेयर है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ये फॉर्मूला चेंज हो गया ना, यहाँ पे अपेरेंट वर्सेस रियल है, वहां पे रियल वर्सेस अपेरेंट था, राइट। तो अब वी वांट टू अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर सिनेरियो बहुत सिंपल है इस तरीके का, ये वाटर, ये एयर, या फिर इधर कोई और मीडियम दूसरा ऊपर है, कोई एयर, या तो ये फॉर्मूले सबके लिए सही है। बट अगर आपका सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हम लोग देखेंगे अभी प्रॉब्लम में, वहां पे ये फॉर्मूले कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो आई एम टेलिंग यू अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू विल रिमेंबर फॉर दिस टाइम। मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो है डियर, तुम्हारे पास एक के बाद एक लेयर लगे हुए हैं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये है लेट्स से μ1, ये है μ1, ये है μ2, ये है μ3, और लेट्स से ये है म्यू ऑब्जर्वर, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट मीडियम से ऑब्जर्वर देख रहा है। दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीडियम। देखो ये सब फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में किसी तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो सिर्फ आप एनसीईआरटी तक चिपके रहोगे तो कुछ आगे मामला बढ़ेगा नहीं, और क्वेश्चन को इस तरह के पूछेंगे आपसे एग्जाम में। तो इससे हमको टूल्स पता होने चाहिए, टूल्स पता रहेंगे तभी हम प्रॉब्लम को फटाक से कर पाएंगे। क्या सिनेरियो है कि ऑब्जेक्ट कहीं तो नीचे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं तो नीचे रखा हुआ है, लेट्स से ये कॉइन है, इसके ऊपर पहले μ1 है, फिर उसके ऊपर μ2 है, उसके ऊपर μ3 है, और उसके ऊपर ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर का भी मीडियम हमको पक्का नहीं कि वो एयर है क्या है, तो हमने उसको भी ले लिया म्यू ऑब्जर्वर। सिनेरियो क्लियर है? तो यहां पे आप लिखोगे ये, अब डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ μ1 μ2 μ3, ये पॉइंट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, वी डोंट नो। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव आई एम जस्ट पुशिंग इट अपवर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाएगा ये। मान लो ये ऐसे आया, ठीक है, ये हुआ हमारा, यहां से यहां तक है हमारा डी रियल, मतलब डेप्थ जो कि है रियल। यहां से यहां तक है जो सीन हमारा वो है डी ए, मतलब डेप्थ जो कि है अपेरेंट, जो हमें लगेगा। तो यहां में हमें ऐसे लिखना है डी ए इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर, सबसे पहले डी ए इज इक्वल टू अपेरेंट म्यू ऑब्जर्वर, ब्रैकेट में समेशन टी आई अपॉन म्यू आई, ये थिकनेस है T1, ये थिकनेस है T2, ये थिकनेस है T3, और ऐसे और भी हो सकते हैं, T4 T5 भी हो सकते हैं, ठीक है। डी अपेरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर समेशन, और इस टाइम्स डी आर, सॉरी टाइम्स डी आर। मतलब क्या,
नहीं सॉरी टर्म्स डी आर नहीं होगी, डी आर तो इसमें ऐड हो जाएगा, T1 T2 T3 में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर एज इट इज, ये ब्रैकेट में टी आई अपॉन म्यू आई, मतलब पहले होगा T1 बाई म्यू वन, T1 बाई म्यू वन प्लस T2 बाई म्यू टू प्लस T3 बाई म्यू थ्री। अब आप समझ रहे हो कैसे लगा रहे हैं फॉर्मूला। अभी मान लो म्यू ऑब्जर्वर इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर इज इन एयर, ऑब्जर्वर इज इन एयर, तो यह डाल दोगे 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। समझ गए बात को। अब क्या करना है, पहले वाले मीडियम की थिकनेस डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम प्लस दूसरे वाले का थिकनेस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट, एंड ऐसे करते जाना। आप खुद देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू1 म्यू2 म्यू3 दिस आंसर DA कैन बी ईदर मोर देन T1 प्लस T2 प्लस T3 और कैन बी लेस देन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है हमको शैलोअर दिखाई दे, या हो सकता है कि और डेप्थ में दिखाई दे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यू1 म्यू2 एंड म्यू3। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे एच.सी. वर्मा का, जिसमें ये कॉन्सेप्ट सीधा स्ट्रेट अप्लाई होता है। ठीक है, अब रिमेंबर वन थिंग, जब आपको चीटी मारनी है आप तोप लेके नहीं आते हो, राइट? तो अगर एकदम स्ट्रेट सिनेरियो है, रियल अपरेंट डेप्थ का, स्विमिंग पूल में कुछ पड़ा हुआ ऊपर से देख रहे हो, तो गो विद दैट रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ फॉर्मूला, सीधा सिंपल, उसमें ये फालतू का कॉम्प्लिकेशन मत लेके आओ। लेकिन जहां पे भी एक दो मीडियम आ गए, सो दो मीडियम में आप कंफ्यूज हो गए, पहले आप एक, अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको कैसे करेगा, पहले इसकी इमेज बनाएगा इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, और फिर फाइनल इमेज बनाएगा। तो ये काम वो 3 बार करेगा, तब उसका आंसर आएगा, जबकि इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली मिलता है वो आंसर। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा मीडियम इन्वॉल्व हो गया है तब आप उस फॉर्मूले की तरफ जाओ। अगर सिंपल एक मीडियम है तो फिर इसको लाने की जरूरत नहीं है, बेकार में कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप चीजें। हाँ, please write down the problem. A beaker contains water. A beaker contains water up to a height of h1. Up to height h1. h1. Height h1. A beaker contains water up to height h1 and oil above water up to a height h2. A beaker contains water up to a height h1 and oil above water up to a height h2, full stop. Find apparent shift in the position of bottom of beaker. Find apparent shift in the position of bottom of beaker when viewed from above water. When viewed from above water, मतलब viewed from air just above water. You have to find the apparent shift in the beaker bottom position. Is there a need to reiterate the question? Okay. So question here is, you have noted this formula. Question is a straight application of this formula. यह है हमारा बीकर, ठीक है, इसकी हाइट है कुछ, इसमें हाइट h1 तक देयर इज वाटर एंड देन हाइट h2 तक देयर इज ऑयल। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ऑयल आर गिवन μ1 एंड μ2। इसका μ1 है, इसका μ2, ये भी दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर गिवन लाइक दिस, वाटर का μ1, ऑयल का μ2। अब वो पूछ रहे हैं इसका जो, दिस इज द बॉटम ऑफ द बीकर, राइट? व्हेन यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम अबव वाटर, what will be the apparent shift? What will be the apparent shift in the bottom? Right? अभी यहां पे हमारा रियल वर्सेस एपरेंट का स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं काम कर सकता, बिकॉज यहां पे दो मीडियम इन्वॉल्व हो गए।
अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला ये इस्तेमाल करिए, अभी फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। म्यू ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि वी आर व्यूइंग फ्रॉम अबव वाटर, राइट, तो 1 हो जाएगा। वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ, मतलब मान लो बॉटम यहाँ पे आ गई, bottom somewhere here, this is the apparent bottom which is coming little right upwards, so this will be dA is equal to, formula लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, mu observer is 1, you are getting it, why we are putting mu observer 1, because we are viewing it from air, air का refractive index होता है 1, this will be into bracket में T1, so T1 में क्या हुआ यहाँ पे, H1 upon mu 1 प्लस H2 बाय mu2, ये आ गई हमारी, ये हमारी आ गई एपरेंट डेप्थ, मतलब ये चीज आई है, ये शिफ्ट नहीं आई है, तो शिफ्ट क्या होगा, H1 प्लस H2 माइनस दिस, H1 प्लस H2 माइनस दिस, सो शिफ्ट विल बी इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं मैं, शिफ्ट विल बी इक्वल टू H1 plus H2, this is the actual depth minus the apparent depth, which is H1 by mu1 plus H2 by mu2। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो H1 की टर्म्स को साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा, H1 कॉमन लोगे आएगा 1 माइनस 1 बाय mu1, इसको अगर वो करूं तो दिस विल बी H1 टाइम्स 1 माइनस 1 by mu1 plus H2 times 1 minus 1 by this will be your shift। और बिल्कुल सिमिलर, एकदम सिमिलर प्रॉब्लम जेई मेंस में आया है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत और सिंपल कर दिया है उन्होंने। क्या किया है, ये d/2 कर दिया है, टैंक, एक टैंक लिया है, इसको d/2, इसको d/2, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे कुछ और है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए और वो क्वेश्चन पूछा है, बस यही है ना। तो इससे भी रादर सिंपल, इसमें H1 H2, उसमें d/2 कर दिया, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ये है। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये नोन है, वेरिएबल्स हैं बट दे आर नोन, इफ दे आर गिवन यू कैन प्लग इन द वैल्यूज एंड एक्चुअली फाइंड इट। देखो प्रॉब्लम में आपको डेटा या तो एक्चुअल नंबर्स में दे सकते हैं वो, या फिर वो इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट दिया तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। Will we know that H2 is सिर्फ oily layer का height and not the bottom cylinder height? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि up to height H2 से, oil is up to height H2। हाँ, a beaker contains water up to height H1 and oil above water up to height, मेरे ख्याल से इसका अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो इसको मैं ऑयल ही लूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन में है। देखो बात बराबर है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो लेट्स अप्रिशिएट कि समवन कैन हैव दिस कंफ्यूजन। इफ आई एम रीडिंग दिस एंड ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड, इट इज वेरी क्लियर, अ बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट H1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें तो, एंड ऑयल अबव अप टू अ हाइट H2, मतलब ऑयल अबव वाटर, ऑयल अबव वाटर अप टू अ हाइट H2, मतलब above water the height is H2, they are very clear, right? अगर ये बोलते हैं कि ये वर्ड नहीं यूज करते कि ऑयल अप टू अ हाइट H2, above water नहीं बोलते, क्वेश्चन में देखो अगर बोलते ऑयल अप टू अ हाइट ऑफ H2, then what you are saying is making perfect sense. I should have taken it from the bottom, right? तो ये हो गए ये, क्या टाइम हो रहा है अभी गाइस? तो we'll stop it here. Stop it here. ठीक है. Resume from here tomorrow. Yeah, tomorrow we will continue this refraction by a glass slab, and then few more problems, and then we have to go towards refraction by a prism, and then TIR.